تو بائبل مقدس چو سکھاں گے کہ روزہ سانو سلامتی دا سرٹیفکیٹ دیندا ہے. آمین ہاللیلویا. اور کل اپنے کلام میں سے جو سیکھا تھا کہ روزے دے بدولت شکست فتح سے بدل گئی. آمین. اور آج خدا کلام میں سے جو باتیں سیکھنی ہیں ان کا تعلق ہمارے سلامتی کی راہ سے ہے. کچھ نہیں کسی نو پتا اگلا مہینہ کہو جا آوے گا, باقی مہینے کنجدے ہون گے, کیڑے مہینے چ کوئی موت دا فرشتہ لاگے لاگے قریب آ جاوے گا, کچھ پتا نہیں. کیڑا ایکسیڈنٹ ہوئے گا, باہر کیڑی گڈی مار جاوے گی, کچھ پتا نہیں. لیکن ہے خداوند دے لوکاں کو ایک انتظام اور روزہ. بولو روزہ. کیا روزہ. تو بائبل مقدس میں سے پڑھے میرے ساتھ عزرا کی کتاب نکالیں, 7واں باب ہے 27ویں آیت. لکھا ہے خداوند ہمارے باپ داؤد کا خدا مبارک ہو جس نے یہ بات بادشاہ کے دل میں ڈالی کہ خداوند کے گھر کو جو یروشلم میں ہے آراستہ کرے, اور بادشاہ اور اس کے مشیروں کے حضور اور بادشاہ کے سب عالی قدر سرداروں کے آگے اپنی رحمت مجھ پر کی. اور میں نے خداوند اپنے خدا کے ہاتھ سے جو مجھ پر تھا تقویت پائی, تے خدا دا ہاتھ تو بغیر تقویت نہیں ہو سکتے. خدا کا ہاتھ مجھ پہ تھا. حالات یہ تھے کہ یروشلم میں سلامتی کے گھر کے اندر ہیکل کو برباد کر دیا گیا تھا. نبوکدنضر چڑھائی کی آگ سے جلا دیا گیا تھا. اب اس کو دوبارہ آراستہ کرنا ہے, اور یہ عزرا غلامی میں موجود ہے, غلامی کے شہر میں موجود ہے, اور خدا پھر بھی کام کرنے والا ہے. بولے آمین. اور وہاں پہ خداوند بادشاہ کے دل میں بات ڈالتا ہے کہ خداوند کے گھر کو جو یروشلم میں ہے آراستہ کرے. اور خدا کا بندہ کہتا ہے کہ خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور میں نے تقویت پائی, اور میں نے اسرائیل میں سے خاص لوگوں کو اکٹھا کیا کہ وہ میرے ہمراہ ساتھ چلیں. کدھر؟ یروشلم کی طرف. کدھر؟ جدھر خدا کا گھر ہے. اور ان کا راستہ انہوں نے جانا ہے. انہوں نے اس راستے کے اوپر جو اب ان سے کافی دور ہے, راستے میں کون کون سے دشمن ہوں گے, کون کون سے گھات لگا کے وہاں پہ بیٹھے ہوں گے, کچھ پتہ نہیں ہے. سفر انہوں نے کرنا ہے. اور بائبل مقدس میں سے پڑھتے ہیں 15ویں آیت 8واں باب عزرا کتاب. اور خدا کا بندہ کہہ رہا پھر میں نے ان کو اس دریا کے پاس جو احادہ کی سمت کو بہتا ہے اکٹھا کیا. وہاں ہم 3 دن خیموں میں رہے. کیا کر رہے ہوں گے؟ شکرگزاری کر رہے ہوں گے کہ خدا نے ہمارے لیے کام کیا ہے. ہاللیلویا. آمین. 3 دن خیموں میں رہے اور میں نے لوگوں اور کاہنوں کا ملاقہ کیا. یہاں پر خدا کا بندہ عزرا اس بات کا بیان کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد 21ویں آیت میں لکھا گیا ہے تب میں نے احادہ کے دریا پر روزہ کی منادی کرائی. اس کو خداوند نے نہیں بولا کہ تو روزہ کی منادی کر, اس سے پتا ہے کہ روزے کی برکت کتنی ہے. آمین. آپ کو خداوند کبھی نہیں بولے گا رات کو آ کے کہ صبح تمہیں روزہ رکھنا ہے. روزہ اپنے خود لے رکھنا ہے. ادھر اس بندے کو پتا ہے کہ ہمارا سفر مشکل ہے, ہم نے سلامتی کے گھر کی طرف جانا ہے, ہم نے خدا کی ہیکل کو آراستہ کرنا ہے, دوبارہ اس کو رینوویٹ کرنا ہے, دوبارہ اس کو آباد کرنا ہے. تب میں نے احادہ کے دریا پر روزہ کی منادی کرائی. کیوں روزہ کی منادی کرائی؟ وجہ تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اور اپنے بال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن بنے. کادے واسطے روزہ رکھ رہا ہے؟ کادے واسطے روزے دی منادی کرائی جا رہی ہے؟ کادے واسطے روزہ رکھا جائے گا؟ تاکہ اس سفر دوران سارے بچے محفوظ رہیں, اسی محفوظ رہیے, اور سارا مال ڈنگر محفوظ رہے. یہ مطلب ہے روزہ سلامتی کی گارنٹی ہے.
और जो जिंदगी भी चाहती है कि सन 2025 के अंदर सलामती के साथ रहे, उनके बाल बच्चों की सलामती रहे, तो फिर रोजे की मुनादी होनी चाहिए। रोजा रखना जरूरी है। तो रोजा फरोतनी बख्शदा है। हालेलुया। आकड़ा खत्म करदा आ। ते जेड़ा बंदा नहीं रोजा रखदा वो समझ फिर आकड़िया हो या कि रब्बा मैं किनू रोजा रखना, कर ले जो कुछ मेरा मर्जी कर ला। रोजा फरोतनी बख्शता है। सफर जो जारी होगा उसमें सलामती हमें अता करता है। मत कुछ सोचे कि मेरा रोजे के बगैर गुजारा हो सकता है। इस बंदे को खुदा ने नहीं बोला, इस बंदे को पता है कि रोजे की बरकत कितनी है, रोजे में सलामती कितनी है। और तब मैंने रोजा की मुनादी कराई ताकि आगे उसका आगे दिया, क्योंकि मैंने शर्म के बाइस बादशाह से सिपाहियों के जत्थे, देखो खुदा का बंदा कह रहा है, तो जेड़ा बंदा रोजा रखेगा उन दुनियादारी दी कोई जरूरत नहीं की। तब कहता है क्योंकि मैंने शर्म के बाइस बादशाह से सिपाहियों के जत्थे और सवारों के लिए दरख्वास्त ना की थी ताकि वो राह में दुश्मन के मुकाबला में हमारी मदद करे। ते जिन खुदा ते भरोसा आया वो खुदा ते भरोसा रखदा है। हालेलुया। मैंने बादशाह से दरख्वास्त ना की ताकि वो राह में दुश्मन, इधर में दुश्मन है सी, अज़र पता सी कि दुश्मन है या रस्ते च, ताकि वो राह में दुश्मन के मुकाबला में हमारी मदद करे। क्योंकि हमने बादशाह से कहा था, क्यों नहीं मांग सकिया? क्योंकि हमने बादशाह से कहा था हमारे खुदा का हाथ भलाई के लिए उन सब के साथ है जो उसके तालब हैं। हालेलुया। ते गवाहियां जो बंदा चंगियां देवेगा ते ईमान भी मजबूत रहेगा। इस बंदे ने बादशाह को दरख्वास्त नहीं की थी क्योंकि वो कहता सी कि हमारा खुदा भला है। हालेलुया। हमारा खुदा भला है और उन सब के साथ है जो उसके तालब हैं, और उसका जोर और कहर उन सब के खिलाफ है जो उसे तर्क करते हैं। सो हमने रोजा रख कर इस बात के लिए अपने खुदा से मिन्नत की। किंज दुआ की थी, किंज मिन्नत की थी, रोजा रख के। क्यों रोजा रखिया? सफर लंबाया, अपना भी सफर लंबाया, अपना भी सफर लंबाया। कुछ नहीं पता साल के किहड़े महीने की हो सकता है, लेकिन खुदा है जो साडी हिफाजत करने वाला। रब साडा जोर इतना साडी है अपना। और कहता है कि तब हमने रोजा रख कर, ये नहीं कह रहे कि मैं रोजा रख के, सो हमने रोजा रख कर इस बात के लिए अपने खुदा से मिन्नत की और उसने हमारी सुनी। सुनो, खुदा दे घर वल जाना है, खुदा दी हैकल वास्ते तैयारी करनी है, हैकल नूं आरास्ता करना है। तो बाइबल मुकद्दस लिखा गया है, तब मैंने सरदार काहिनों में से 12 को चुन लिया, 12 को उसने चुन लिया। और लिखा गया है उनको वो चांदी सोना ज़रूफ, यानी वो जो हदिया जो हमारे खुदा के घर के लिए बादशाह और उसके वजीरों, अमीरों और तमाम इसराइल ने जो वहां हाजिर थे नजर किया था, तोल कर दिया। हालेलुया। जा किधर रहे ने? आजाद होके किधर जा रहे ने? सलामती दे घर वल जा रहे ने, यरूशलेम जा रहे ने, खुदा दे घर वल जा रहे ने, खुदा दे घर नूं रास्ता करने वास्ते। चांदी जो कुछ भी मौजूद है तोल के दे रहे ने कि साडे रब वास्ते। हालेलुया। आमीन। कहता है कि उन्हें तोल कर दिया। और कितना सोना चांदी था। और लिखा कि मैंने उनके हाथ में से 650 कंतार चांदी, 100 कंतार चांदी के बर्तन और 100 कंतार सोना और सोने के 20 प्याले जो 1000 दरम के थे, और जो चोखे चमकते हुए पीतल के
दो बर्तन जो सोने की तरह कीमती थे तोल कर दिए। अपना बाज़ौक़ात खुदा दे घर आंदा की स्टाइल बनता है, इत्थे देखो खुदा दे घर च एक गुलामी चों निकल के जा रहे हैं सलामती दे घर वाल, और तोल कर दिए। मैंने उनसे कहा तुम खुदावन के लिए मुकद्दस हो, और ये बर्तन भी मुकद्दस हैं, और ये चांदी सोना खुदावन तुम्हारे बाप दादा के खुदा के लिए रजा की कुर्बानी है। सो होशियार रहना जब तक यरूशलेम में खुदावन के घर की कोठरियों में सरदार काहिनों, लावियों और इसराइल के अबाई खानदानों के अमीरों के सामने उनको तोल कर ना दे दो। हालेलुया। जब तक तोल ना दो इनकी हिफाजत करना। हालेलुया। देखो खुदा दे घर वास्ते की लगना, तोल के दिता जा रहा है ते इहदी हिफाजत करना, उसे तोल के वापस करना है। जिम्मेदारी पाते किते पाते, लावियां दे पाते, खुदा दे घर की खिदमत करने वाले वास्ते पाते। और बाइबल मुकद्दस से आगे पढ़ते हैं, सो होशियार रहना जब तक यरूशलेम में खुदावन के घर की कोठरियों में सरदार काहिनों, लावियों और इसराइल के अबाई खानदानों के अमीरों के सामने उनको तोल ना दो, उनकी हिफाजत करना। सो काहिनों और लावियों ने सोने और चांदी और बर्तनों को तोल कर लिया ताकि उनको यरूशलेम में हमारे खुदा के घर में पहुंचाएं। हालेलुया, हालेलुया। 31वीं आयत, फिर हम पहले महीने की 12वीं तारीख को फिर सफर शुरू हो गया। अहादा के दरिया से रवाना हुए। पहले तैयारी की गई है, तैयारी रोजा रख के दुआ की गई है। खुदा दे घर च कुछ खुदावन दे घर च समान देने वास्ते तोलिया गया है और अपने तैयार किया गया है। खुदा दे घर च आने की तैयारी है, जान की तैयारी है। और फिर हम पहले महीने की 12वीं तारीख को अहादा के दरिया से रवाना हुए कि यरूशलेम को जाएं। हालेलुया। और हमारा सफर यरूशलेम का नहीं है, हमारा सफर आसमानी है। हालेलुया। हमारा सफर आसमानी है। हम इस सफर आसमानी के दौरान कितना खुदावन के उस बादशाह के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं, क्या कुछ खुदावन के लिए हम अपने आप को उसकी हुजूर में नजर करने के लिए तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पे सफर शुरू हो गया। अहादा के दरिया से रवाना हुए कि यरूशलेम को जाएं हमारे, और लिखा है बाइबल मुकद्दस में, और हमारे खुदा का हाथ हमारे साथ था। तो खुदावन के लिए जोर ताली बजाएंगे। इससे पहले कि खुदा का हाथ उनके ऊपर रहे, उन्होंने खुदावन के लिए कुछ किया था और रोजे के साथ अपने सफर को अपना सहारा बनाया था। रोजा रख के खुदा के सामने दुआएं की थी और खुदावन के हैकल के लिए अपने आप को तैयार किया था। लिखा गया है, खुदा का बंदा कहता है कि खुदा का हाथ हमारे साथ था और उसने हमको दुश्मनों और रास्ता में घात लगाने वालों के हाथ से बचाया। हालेलुया। दुश्मन थे, घात लगाए हुए थे, इनके पास अपनी जानों के सिवा खुदाओं की हैकल की सोना था, चांदी थी, बर्तन थे, बहुत कुछ था और उनके खुदाओं के घर तक पहुंचाना था। इन्होंने खुदाओं के घर तक जाना था, खुदा का हाथ इनके ऊपर था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का हाथ इनके ऊपर था जिसने हमको दुश्मनों और रास्ता में घात लगाने वालों के हाथ से बचाया और हम यरूशलेम में पहुंच गए। हालेलुया, हालेलुया। तो पहुंचाने वाले खुदावंद वास्ते जोर ताली बजाएंगे और वही खुदावंद हमारा खुदा यहाँ पे मौजूद है और हम यरूशलेम पहुंचकर 3 दिन तक ठहरे रहे। वाह क्या बात है,
3 दिन तक ठहरे रहे, शुक्र ही करते होने ने। खुदा तेरा शुक्र तू साडी हिफाजत करता रहा। तेरे कलाम में जो लिखा कि रब तेरे वास्ते करेगा, फरिश्तियां फरमान तू खुदा साडी हिफाजत करता चला गया। तूने साडी सारी रात साडी हिफाजत की। 3 दिन तक शुक्रगुजारी ही करते। देखो 3 दिन तक खुदा की शुक्रगुजारी करते रहे। ते जिस खुदा ने सानू हुण तक इत्थों तक लेके आया है, क्या उहदी खातर कितनी शुक्रगुजारी कर रहे हैं। हालेलुया। तो ये 3 दिन तक खुदा के हुजूर में शुक्रगुजारी करते रहे और चौथे दिन वो चांदी सोना बर्तन हमारे खुदा के घर में तोल कर काहिनों के हाथ में दिए गए। हालेलुया हालेलुया। और सब चीजों को गिन कर और तोल का पूरा वजन उस वक्त लिख लिया गया। और असीरी में से उन लोगों ने जो जलावतनी से लौट आए थे, इस्राएल के खुदा के लिए सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाई। हालेलुया आमीन। तो आए अपने खुदा के में खड़े हो जाएंगे। दुश्मन से बचाने वाला खुदा हमारा खुदा मौजूद है। हमारा सफर आसमानी है। रास्ते में मैंने अहादा के दरिया पे रोजा की मुनादी कराई कि रखो रोजा, सफर लंबा है, दुश्मन आगे ज्यादा है, दुश्मन घात लगाए हुए हैं। हमें रोजा रख के खुदा की सलामती में चलना है। हमने किसी फौजों पे नहीं, हमने सिपाहियों पे नहीं, हमने हथियारों पे भरोसा नहीं रखना, बल्कि खुदा के हाथ पर भरोसा रखना है। वो हमें बचाता चला जाएगा। कोई साथ में पुरुष नहीं थी, कोई साथ में फौज नहीं थी, कोई हथियार नहीं था। उनके पास खुदा उनके हुजूर में उनका रोजा रखा हुआ मौजूद था और खुदा उनके हुजूर में वो बाकी दुआ का जवाब मौजूद था। और हैकल में पहुंचाने के लिए उनके पास बहुत कीमती सामान था, सोना था।